Welcome to the today's lecture. Yesterday we discussed work done by a constant force. After that we discussed the nature of the work. We discussed positive work, we discussed the negative work. Now today let us start with zero work. आज हम बोलेंगे कि वर्क डन कब जीरो होगा. हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकाला था हमने कल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, दैट वाज W इज इक्वल टू Fs cos theta. Theta was the angle between the force and the displacement. In case of positive work, जो आपका फोर्स था, its component was in the direction of displacement. वो कब? When this is possible, this is possible only when theta was acute, because in that case cos theta was positive. When cos theta is positive, work done is positive. In case of negative work, this force has component in a direction opposite to the direction of displacement. In this case, our theta was obtuse, so cos theta was negative. Therefore, this work done was negative work. Now today we will discuss the zero work. कैसे हम डिस्कस करेंगे? सपोज हमारे पास यहां एक बॉडी है. सपोज इस बॉडी पे मैंने अप्लाई किया फोर्स F. दिस इज फोर्स F. I applied this force F on body at this position. Suppose ये बॉडी जो है, this body moves through a distance S from position A to position B. अगर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे, यहां पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फोर्स जो है, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. तो यहां पर जो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है, दैट एंगल इज 90 डिग्री. तो थीटा जो है दैट्स 90 डिग्री. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द वर्क डन. मुझे W निकलेगा Fs इंटू cos 90. तो मुझे W निकलेगा Fs इंटू 0, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 है. तो मुझे W निकलेगा 0. तो इसका मतलब है वर्क डन ऑन बॉडी मुझे तब 0 निकला जब ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. हम ऐसे कहेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी ए जीरो वर्क इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. Work done by the force is said to be a zero work if the force acting on a body is perpendicular to the direction of motion of body or direction of displacement of a body, because in that case theta is equal to 90 degree, so cos 90 is 0, W is 0. So this was about zero work. Now let us discuss some of its examples of zero work. Number one example, सपोज हमारे पास एक बॉडी है. दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ. हमारे पास एक बॉडी है या पार्टिकल है. दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ. इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में एक फोर्स घुमाता है. उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स always acts along the radius of the circle and is directed towards the center of the circle. When a body moves along a circular path, it is acted upon by a centripetal force which is always directed along the radius vector and directed towards the center. Suppose at any time t मेरी बॉडी है पॉइंट A पे या पार्टिकल है पॉइंट A पे. After time t1 this reaches at point B. अब जो ये डिस्प्लेसमेंट यहां A से B तक इस बॉडी ने कवर किया, ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहां पर अगर हम देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और सेंट्रीपिटल फोर्स है,
they are perpendicular to each other, therefore angle between them is 90 degree. In that case work done is 0. तो हम कहेंगे work done by a centripetal force in moving a body along a circular path is a 0 work. It is because the centripetal force is always perpendicular to the direction of displacement of a body, direction of motion of a body. So when force is perpendicular to the direction of displacement or direction of motion of a body, in that case work done on a body is 0. Therefore this is the example of 0 work. Work done by a centripetal force in moving a body along a circular path is an example of 0 work. Number second example, आप लोगों ने एक कुली को देखा होगा। जब आप लोग रेलवे स्टेशन पे होते हैं या बस स्टैंड पे होते हैं, आपके पास लोड होता है, आपके पास सामान होता है, आपके सामान एक कुली के हवाले करते हो और कुली बेचारा क्या काम करता है? He keeps the load on his head. When he keeps the load on his head, उसके बाद वो ये लोड लेके निकलता आगे की तरफ, he covers horizontal distance. हमें ये जो कुली है, इस कुली को पसीना भी निकलता है, मगर फिजिक्स कहती है कि ये कुली जो है he doesn't perform any kind of work. A कुली carrying a load on his head while moving on the road does not perform any work in physics. क्यों? It is because the force applied by the कुली in holding this load on his head, this is perpendicular to the horizontal displacement. When force is perpendicular to the displacement, work done is 0. Therefore we can say a kuli carrying a load overhead while moving on a horizontal road does not perform any work. We can say it is an example of 0 work. It is because the force applied by the kuli to hold this load, which must be equal to the weight of the load, acts perpendicular to the horizontal distance traveled by the kuli. So when it's perpendicular to the horizontal work done is 0. So this is an example of 0 work. This finishes the nature of work. Now let us today discuss units of work. Today we will discuss units of work. Units of work. हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. F जो है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, S इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सपोज हमारे पास यहां एक बॉडी है पॉइंट ए पे. सपोज इस बॉडी पे मैंने 1 यूनिट फोर्स अप्लाई किया. I have applied 1 unit force on a body lying at point A. Suppose under the action of this 1 unit force, the body moves from point A to B. The body moves from point A to B through a unit distance. Through a unit distance. Through a unit distance, or I can say 1 unit distance. यहां पर जो फोर्स मैंने अप्लाई किया और बॉडी की जो मोशन है, they are in the same direction. Therefore, angle between force and displacement is 0 degree. Because force applied on a body and the direction of motion, or we can say direction of displacement, they are in the same direction. Therefore, theta is equal to 0 degree. Let us define unit work. Unit work हम कैसे करेंगे? Let F is equal to 1 unit force. 1 unit force, or we can say unit force. S को लेंगे हम 1 unit distance, or simply we can say unit distance. थीटा जो है उसको लेंगे 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है. W को लेंगे हम 1 यूनिट वर्क. तो अगर हम इस इक्वेशन, फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे,
W के बदले लिखेंगे हम यूनिट वर्क, हम लिखेंगे यूनिट वर्क, क्योंकि 1 यूनिट वर्क हो गया यूनिट वर्क, 1 यूनिट फोर्स हो गया यूनिट फोर्स, यूनिट फोर्स इंटू 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस इंटू cos 0, cos 0 जो हो गया, cos थीटा जो है दैट इज 0, तो हम ऐसे लिखेंगे cos 0, cos 0 इज 1, तो हमें ऐसे निकलेगा यूनिट वर्क इज इक्वल टू यूनिट फोर्स इंटू यूनिट डिस्टेंस, यूनिट वर्क इज इक्वल टू यूनिट फोर्स इंटू यूनिट डिस्टेंस। हम ऐसे लिखें, डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट वर्क is the amount of work done on a body by a force, और ऐसे लिखेंगे यूनिट वर्क is the amount of work done if a unit force applied on a body displaces a body through unit distance in its own direction। हम ऐसे कहेंगे work done on a body is said to be a unit work if a unit force is applied on a body and the body moves through a unit distance in the direction of force। क्या कहा हमें? Unit work is the amount of work done when a unit force displaces a body through unit distance in the direction of force, या हम कहेंगे in its own direction। So this was unit work। What's the unit work? Now जो ये वर्क है, चूंकि दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस एंड cos थीटा। नाउ ये फोर्स जो है, इस फोर्स के दो किस्म के यूनिट्स होते हैं। दिस फोर्स हैज टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स। नंबर 2 ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जो हमारा फोर्स है, इसको दो किस्म के यूनिट्स है, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। फोर्स हैज टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। पहले मैं बताऊंगा आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं which do not change from one place to another place। अगर बांडीपोरा में कुछ किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई एब्सोल्यूट यूनिट होगा, वही उसका एब्सोल्यूट यूनिट होगा किसी दूसरी जगह पे भी। Those units which do not change from one point to another point, they are called as absolute units। अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होते हैं? क्योंकि हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, that changes from one place to another place। If we that changes with the help with the altitude or with the depth, because there is a variation of g with the depth and with the altitude। You people have read in class 9 in gravitation। क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ g जो है वो कम हो जाता है, अगर हम नीचे जाएंगे डेप्थ पे, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ इट चेंजेस, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। लिहाजा ग्रेविटेशनल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं which vary from place to place। Why they vary from place to place? Because acceleration due to gravity varies from place to place। So we have two kinds of units, absolute units and gravitational units। Units which do not vary from one place to another place, they are called absolute units, and the units which vary from one place to another place, they are called as what units? Gravitational units। So this force has both absolute as well as gravitational units। Therefore this work can have both absolute as well as gravitational units। This work can have both absolute as well as gravitational units। Let us first discuss the absolute units of work। पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 absolute units of work, absolute units of work। Now before discussing absolute units of work, we should know what is an absolute unit of work। देखो बेटा, फिर मैं शुरू करूंगा। हमारे पास इक्वेशन है W is equal to Fs cos theta, work done by the constant force। सपोज इस बॉडी को पॉइंट ए पे मैंने 1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स अप्लाई किया।
1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। कहां पर अप्लाई किया? पॉइंट ए पे। सपोज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स दिस बॉडी मूव्स थ्रू यूनिट डिस्टेंस। मैं कहूंगा दिस बॉडी मूव्स थ्रू व्हाट डिस्टेंस? यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में बॉडी आगे चली गई, उसी डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्टेंस कवर की। तो इसका मतलब है जो थीटा यहां पर होगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा इफ F is equal to 1 absolute unit of force, हमारा S जो होगा if this is 1 unit of distance, यानी यहां मैं कहूंगा यूनिट डिस्टेंस, हमारा थीटा जो है that is 0 degree, it means that the force and displacement or distance they are in the same direction। तो W को लेंगे हम 1 absolute unit of work। तो इस इक्वेशन में देंगे W के बदले आएगा हमें 1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, फोर्स के बदले लिखेंगे 1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इनटू S के बदले लिखेंगे हम 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या सीधे लिखेंगे यूनिट डिस्टेंस, इनटू होगा cos 0, चूंकि cos 0 है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही रहेगा हमें। तो अब हम डिफाइन करेंगे, हम ऐसे बताएंगे वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इफ ए फोर्स ऑफ 1 एब्सोल्यूट यूनिट, या if 1 absolute unit of force displaces this body through a unit distance in the direction of force। फिर से बताएंगे work done on a body is said to be 1 absolute unit of work done on a body is said to be 1 absolute unit if a force of 1 absolute unit displaces a body through what distance? Unit distance in the direction of force। Now इस वर्क को दो किस्म के एब्सोल्यूट यूनिट्स है। नंबर 1 इज SI यूनिट, नंबर 1 इज जूल, number 1 is joule। Work has two types of absolute units, number 1 is joule। ये जूल जो है, this जूल जो है, this is the absolute unit of work in SI system। What is joule? हम लिखेंगे it is the absolute unit of work इन SI सिस्टम। जो जूल आपका है बेटा, जूल एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क है, लेकिन किस सिस्टम में? SI सिस्टम में। हम इस जूल को डिफाइन करेंगे, फिर से हम अपनी इक्वेशन पे आएंगे W इज इक्वल टू FS cos थीटा। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सपोज यहां पर बॉडी मेरी जो है दैट इज एट पॉइंट A। सपोज इस बॉडी पे मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, चूंकि इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सपोज अंडर द एक्शन ऑफ दिस 1 न्यूटन फोर्स दिस बॉडी मूव्स फ्रॉम A टू B थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मैंने A पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी ने मूव किया फ्रॉम A टू B, कितनी डिस्टेंस कवर की? 1 मीटर। यहां पर जो डिस्टेंस ऑफ फोर्स जो है, या डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज अगेन हियर 0 डिग्री। हम ऐसे लिखेंगे इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, S इज इक्वल टू 1 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, force and displacement act in the same direction, W is equal to 1 जूल। तब मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी 1 जूल इज इक्वल टू, फोर्स को लगाओ 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट को लगाओ 1 मीटर इंटू cos 0। cos 0 जो है दैट्स 1, तो आपको 1 जूल निकला 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फिर से जूल जो है इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम। हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू FS cos थीटा। फोर्स को लिया मैंने 1 न्यूटन, S को लिया मैंने 1 मीटर,
थीटा को लिया 0, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो दे आर इन द सेम डायरेक्शन, W को लिया 1 जूल, तो मुझे निकला 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इससे मैं 1 जूल डिफाइन कर सकता हूं। मैं ऐसे कहूंगा, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 जूल if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of what meters? 1 meters in its own direction. Work done on a body is said to be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. ठीक है, एक बॉडी का वर्क डन तब 1 जूल होती है जब हम एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर उस 1 न्यूटन फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस किया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस वक्त हम कहेंगे जो बॉडी पे जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू 1 जूल। तो जूल जो होता है दिस इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। सेकंड वन, दूसरा जो है, दूसरा एब्सोल्यूट यूनिट जो वर्क का है that is erg. Erg जो है, it is the absolute unit of work in CGS system. वो SI में था, ये CGS में है। It is the absolute unit of work in CGS system. हम इस erg को डिफाइन करेंगे। W जो है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। चूंकि हमने CGS सिस्टम लिखा, हमें फोर्स का यूनिट डाइन होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। ऐसे ही सपोज इस पॉइंट ए पे मैंने बॉडी पे फोर्स किया, कितना अप्लाई? 1 डाइन। सपोज अंडर द एक्शन ऑफ दिस 1 डाइन फोर्स जो मेरी बॉडी है, इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो थीटा अगेन क्या होगा? 0 के बराबर। मैं लिखूंगा इफ F इज इक्वल टू 1 डाइन, S इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, W इज इक्वल टू 1 अर्क, देन तब क्या बनेगी ये इक्वेशन? ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, 1 अर्क इज इक्वल टू, फोर्स के बदले क्या लिखूंगा बेटा? 1 डाइन। चूंकि फोर्स मैंने 1 डाइन लिया, कितना डिस्टेंस बॉडी ने मूव की? 1 सेंटीमीटर, इनटू आएगा cos 0 डिग्री, cos 0 है 1, तो हमें ये आएगा 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन से मैंने निकाले है, इस इक्वेशन से। तो मैं यहां पर अर्ग डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन displace a body through a distance of 1 centimeter in its own direction, यानी in the direction of force। फिर से, work done on a body is said to be 1 erg if a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. Now let us discuss relation between joule and erg. Relation between joule and erg, एक छोटी सी relation between joule and erg. Relation between joule and erg. देखो बेटा, आपको पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, अर्ग जो अभी पढ़ा है दैट इज डाइन सेंटीमीटर। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा, जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स, और 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। 100 मींस 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर्स। आपका 1 न्यूटन होता है 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स, आपका 1 मीटर होता है 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर्स। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, तो हमको बन गया 1 जूल इज इक्वल टू, न्यूटन के बदले लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स इंटू मीटर के बदले लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर्स। अब यहां बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आपको निकला 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर जो है दैट इज अर्ग, तो हम बताएंगे
1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs. This is the relation between joule and erg. 1 joule जो होता है वो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन जो होता है दैट इज 10 रेज टू पावर 5 डाइम्स. 1 मीटर जो होता है दैट इज 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर्स. इस इक्वेशन में न्यूटन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मीटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको निकलेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स. These were the absolute units of work. आगे जाएंगे हम. Now we will discuss the gravitational units of work. Gravitational units of work. पहले हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा. सपोज पॉइंट ए पे मेरे पास एक बॉडी है. इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया. सपोज दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्रेविटेशनल यूनिट. मैंने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया विच इज इक्वल टू 1 ग्रेविटेशनल यूनिट. सपोज अंडर द एक्शन ऑफ दिस force, this body moves from point A to point B through a unit distance. Through a unit distance. अब distance जो इसने कवर किया, displacement इसने कवर किया, they are in the same direction. Therefore, theta is equal to 0 degree. यहां पर हम distance और displacement इकट्ठे क्यों लेते हैं? Because body is moving along a straight line. So, instead of distance, instead of displacement, you can also take a distance. Because when a body moves along a straight line, distance and displacement are same. अब देखो बेटा यहां पर वापस जाऊंगा उसी रिलेशन पे. W is equal to Fs cos theta. F को मैंने लिया 1 gravitational unit. 1 gravitational unit of force. S को ले लूंगा मैं 1 unit of distance. S को लिया मैंने कितना 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस. W को मैं लूंगा 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क. 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क. W को लिया मैंने 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क. तो इस थीटा को मैंने लिया 0 डिग्री बिकॉज फोर्स एंड डिस्टेंस दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. अब W के बदले क्या लिखूंगा मैं? इक्वेशन इसको फर्स्ट रखूंगा नाम. इक्वेशन फर्स्ट में W के बदले क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स के बदले में लिखूंगा 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस के बदले लिखूंगा मैं 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस. अब अगेन यहां पर हमारा cos 0 आएगा दैट्स 1. तो यहां पर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डिफाइन कर सकता हूं. मैं ऐसे लिखूंगा वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क. अगर हम इफ ए फोर्स ऑफ 1 ग्रेविटेशनल यूनिट और वी कैन से इफ 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स displaces this body through unit distance in the direction of force. मैं ऐसे बताऊंगा वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 ग्रेविटेशनल यूनिट. इफ 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स displaces this body through unit distance in the direction of force. जैसे मैंने 2 किस्म के एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़ाए वर्क के, इसी तरह वर्क के 2 किस्म के ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं. एक है SI सिस्टम में, दूसरा है CGS सिस्टम में. The first one is kilogram meter. The first one is kilogram meter. चूंकि किलोग्राम जो है it deals with SI सिस्टम, तो इसका मतलब है जो किलोग्राम मीटर होगा it is the gravitational unit of work in SI system. इस किलोग्राम मीटर क्या है? It is the gravitational unit of work in SI system. It is the gravitational unit of work in SI system. Let us define this kg meter. kg meter जो है it is the gravitational unit of work in SI system. हम इसको डिफाइन करेंगे. जैसे
एसआई एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट था दैट वाज न्यूटन, इसी तरह एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है दैट इज कॉल्ड केजी वेट और केजी फोर्स। यहां देखो, सपोज यहां पर एक बॉडी है, दिस इज लाइंग एट पॉइंट ए, इस बॉडी पे मैंने अप्लाई किया 1 केजी वेट फोर्स। केजी वेट जो है दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, केजी मींस किलोग्राम वेट। सपोज अंडर द एक्शन ऑफ 1 किलोग्राम वेट फोर्स, ये जो मेरी बॉडी है इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए टू बी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो एफ और एस जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, लिहाजा इनके दरमियान जो एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री। मैं इस इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा, इफ एफ इज इक्वल टू 1 केजी वेट, एस इज इक्वल टू 1 मीटर, theta is equal to 0 degree, means F and S are in the same direction. W is equal to 1 kg meter. Then अब ये फर्स्ट क्या बन गई, W के बदले में लिखूंगा 1 kg meter is equal to F के बदले में लिखूंगा 1 kg weight into S के बदले में लिखूंगा 1 मीटर। उसके बाद में लिखता cos थीटा के बदले 0, cos 0 होता है 1, तो मुझे ये इक्वेशन, इससे ये इक्वेशन निकलेगी, W के बदले 1 केजी मीटर, फोर्स के बदले 1 केजी वेट, और आपका जो डिस्टेंस है उसके बदले 1 मीटर, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन से मैं 1 केजी मीटर डिफाइन करूंगा, मैं बता सकूंगा वर्क डन ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 केजी मीटर इफ ए फोर्स ऑफ 1 केजी वेट, if a force of 1 kg weight displaces the body through a distance of 1 meter in the direction of force. 1 kg meter is the amount of work done when a force of 1 kg weight displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of force. अब मैं यहां पर रिलेशन निकालूंगा between kg meter and joule। चूंकि जूल भी ऐसा यूनिट है, केजी मीटर भी ऐसा यूनिट है, डिफरेंस एक ही है, केजी मीटर ग्रेविटेशनल यूनिट है, जूल जो है वो एब्सोल्यूट यूनिट है। केजी मीटर वेरी हो सकता है, जूल जो है दैट कांट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन बिटवीन ऐसे लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर एंड जूल, वेरी सिंपल रिलेशन, रिलेशन बिटवीन केजी मीटर एंड जूल। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा 1 केजी मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1 केजी वेट इंटू 1 मीटर। What is 1 kg weight? 1 kg weight is the gravitational unit of force in SI system. अब जो 1 kg weight होगा, this 1 kg weight is equal to 9.8 Newton. Relation between kg weight and Newton मैकेनिक्स में पढ़ा है। 1 kg weight किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। तो 1 kg weight के बदले क्या लिखूंगा मैं? 9.8 न्यूटन। तो क्या बनेगी इक्वेशन? We get 1 kg meter is equal to 9.8 न्यूटन into 1 मीटर। तो मुझे ऐसे निकलेगा 1 kg मीटर is equal to 9.8 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर जो है दैट इज जूल, न्यूटन मीटर क्या है? जूल। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 kg मीटर is equal to 9.8 जूल्स। जब आपको केजी मीटर कन्वर्ट करना होगा जूल में तो आपको ये रिलेशन यूज करनी है, 1 केजी मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल्स। आगे जाएंगे, अब हम ग्रेविटेशनल यूनिट जो है व्हाट इज ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर जो है दिस इज ग्राम सेंटीमीटर जो है दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। ग्राम सेंटीमीटर क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन व्हाट सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास W है Fs cos थीटा, मैंने बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया? 1 ग्राम वेट। Suppose under the action of this 1 gram weight, my body moves from A to B through a distance of 1 centimeter.
ठीक है ना। Therefore जो यहां पर मेरा थीटा होगा that will be what 0 डिग्री, that will be 0 डिग्री। Now W is equal to Fs cos थीटा, F दिया मैंने 1 ग्राम वेट, S दिया मैंने 1 सेंटीमीटर, थीटा जो है वो 0 डिग्री, अब W जो है वो है 1 ग्राम सेंटीमीटर। लेट मी सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या बन गया 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर, cos 0 जो है दैट्स 1। तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा 1 ग्राम सेंटीमीटर is the amount of work done when a force of 1 gram weight displaces a body through a distance of 1 centimeter in the direction of force। एक बॉडी पे हमने तब 1 ग्राम सेंटीमीटर काम किया जब इस बॉडी पे हम 1 ग्राम वेट फोर्स लगाएंगे। अगर उस 1 ग्राम वेट फोर्स से बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी पे जो वर्क है दैट्स इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर। अब यहां छोटी सी रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ग्राम सेंटीमीटर एंड अर्क, रिलेशन बिटवीन ग्राम सेंटीमीटर एंड अर्क। हमने अभी पढ़ा 1 ग्राम सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 ग्राम वेट जो है ये होता है बराबर 980 डाइन्स। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन्स इंटू 1 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन्स इंटू सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग्स। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 980 अर्ग्स। दिस कंप्लीट्स द यूनिट्स ऑफ वर्क।